السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ دوستو، ایرانی صدر اپنا دورہ 3 روزہ مکمل کرنے کے بعد واپس جا چکے ہیں، اور اس دورے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم پاکستان اور ایرانی صدر مشترکہ پریس بریف کر رہے تھے جس میں شیر بھی اس میں انہوں نے جب کشمیر کا ذکر کیا، دوسری جانب سے اس پہ کوئی رسپانس نہیں آیا، ایرانی صدر نے کشمیر پہ بات نہیں کی، اور اس پر پاکستان میں تو ایک اچھا خاصا کچھ ایک گروہ تھا جنہوں نے واویلا مچانے کی کوشش کی، ہندوستان نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا۔ لیکن میں جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ ان کی آئی، میں نے اس کو پڑھنے کی بھرپور کوشش کی کیونکہ انگریزی میں تھی، اور آپ کو میری انگریزی پہ شک ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اب فارن سروسز میں مجھ جیسے انگریزی والے کچھ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، تو میں نے وہ پڑھی ہے انگریزی، بڑی سادہ انگریزی میں۔ انہوں نے 13واں پیرا تھا جو کہ کشمیر کے حوالے سے تھا، 13واں پوائنٹ جی بہرحال بھائی کا ذکر کیا۔ ہاں نہیں، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے بہت غور سے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو، مشترکہ اعلامیہ کو دیکھا۔ جی ہاں جی، نقطہ نمبر 13 ہے اس کا، بوتھ سائڈس یعنی دونوں اطراف ہائی لائٹڈ دی نیڈ، اس امر کی ضرورت پر زور دیا، ٹو ریزالو دی ایشو آف کشمیر، کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہونا چاہیے تھرو ڈائلاگ اور پیسفل یعنی کہ پرامن اور مذاکرات کے ذریعے اس کا حل ڈھونڈا جائے، جس میں اس خطے کے لوگوں کی جو رائے ہے اور ول اور ارادہ بھی شامل ہو، اور بین الاقوامی قوانین بھی ملحوظ خاطر رکھا جائیں، یقیناً ظاہر ہے کہ UN ریزولوشنز کا۔ تو اس حوالے سے جو پاکستان کی آفیشیل پوزیشن رہی ہے تھرو آؤٹ، اس کو دوبارہ ایرانی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی صدر نے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو انڈورس کیا، تو تبھی یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے سر۔ ارے بھائی، یہ مشترکہ اعلامیہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ایرانی صدر کی ان کی منظوری سے آیا ہے، خدا کے لیے، اور اس میں وزیر اعظم پاکستان کی منظوری بھی شامل ہے، اسی لیے اس کو مشترکہ اعلامیہ کہا جاتا ہے۔ بالکل جی۔ تو یہ تو ہو گئی آپ کی ایک حوالے سے، لیکن ہمارے ہاں کچھ اور بھی پوائنٹس میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ ذرا ہلکا سا روشنی ڈال جائیں کہ اس کے ثمرات کیا رہے، اس ٹور کے جو وزٹ تھا ایرانی صدر کا پاکستان کا۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ ایک بات بنیادی طور پر آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایران آپ کا ہمسایہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی 900 کلومیٹر لمبی سرحد ہے اس کے ساتھ، بالکل ایسے ہی، جس کے دونوں اطراف آبادیاں ہیں۔ خالی ہمسائیگی ہی اپنی جگہ کو فیکٹر نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ صدیوں تک پھیلے ہوئے رشتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے ایسے علاقے بھی ہیں جو کسی دور میں براہ راست ایران کے زیر نگی رہے ہیں۔ آپ کے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایران سے آ کر یہاں آباد ہوئے، وہاں بھی ایک صوبہ بلوچستان ہے، میں نے آج اسٹیٹمنٹ یا وہ بلوچستان سیستان۔ تو عرض میں صرف یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمسایوں کے ساتھ آپ تعلقات کو اس طرح نہیں دیکھتے ہو کہ ابھی 10 سالوں میں کیا ہے، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ 1000 سال پہلے کیا صورت حوال تھی اور آئندہ 100 سال میں کیا ہو سکتی ہے۔ اس تمام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے ہاں اصل میں ایک نقطے پر اس کو مرکوز کر دیا گیا کہ ایرانی صدر آ رہے ہیں، کیا پاکستان ایران گیس پائپ لائن تعمیر ہو جائے گی یا نہیں؟ ہاں، ارے بھائی، ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ تو 2014 میں مکمل ہو جانی چاہیے تھی، جس کو بعد میں انہوں نے وقت دیا، لیکن 10 سال کا وقفہ دیا گیا نا۔ تو ابھی دونوں، اچھا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر نہیں تعمیر شروع ہوگی تو ایران فوراً بین الاقوامی عدالت میں چلا جائے گا اور ہم سے 18 ارب ڈالر۔ ارے بابا، 18 ارب ڈالر تو جب لے گا نا کہ وہ جائے۔ اچھا، اب موجودہ حالات میں ایران کیوں چاہے گا کہ وہ چلا جائے اس کام کے لیے، جب اس کے اوپر عالمی دنیا جو ہے امریکہ کے اشارے پر جو ہے ایک اس کی زندگی ٹائٹ کر رہی ہے، وہ کیوں جائیں گے؟ صحیح بات ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ دیکھو، جنوری میں ہی، یہ کوئی بہت پرانی 200 سال پرانی بات نہیں ہے، اس سال کے آغاز میں جنوری فروری دونوں مہینوں میں یہ ہوا، انہوں نے ہمارے ہاں کچھ ٹھکانوں پہ حملہ کیا، پہل ان کی جانب سے ہوئی تھی، پھر ہم نے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جی ان کے ہاں
उनके बलूचिस्तान सीस्तान में दहशत गर्द करने के कुछ वारदातों में मुलविस अफराद यहाँ मौजूद थे। वो पंजगूर के करीब एक पहाड़ के ऊपर उन्होंने उसको तबाह किया। जवाबन हमने कहा कि भाई साहब हमारे भी कुछ बंदे यहाँ मौजूद हैं। अगर आपके वो सैफुल अदल थी या जैशुल अदल थी तो हमारे भी यहाँ है, तो देखिए हमने। तो अब इस वक्त क्या सूरत हाल, हमारी प्रायोरिटी क्या है? गैस पाइपलाइन पे यार गैस पाइपलाइन फिर छोड़ो ना यार। गैस पाइपलाइन में ये कह रहा हूँ कि जिसको 2014 में मुकम्मल होना चाहिए था, वो 2024 तक का तो टाइम उन्होंने खुद दिया था, तो 5 साल और भी तो दे सकते हैं। स्टेटमेंट में पढ़े ना तो इस सारी सेक्शन में बार बार ट्रेड का जिक्र हो रहा है। ओ यार, तो ट्रेड का जिक्र इसीलिए हो रहा है कि अभी कोई जल्दी नहीं है यार, कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई ईरान आपसे 18 अरब डॉलर जो है वो तकाजा करने नहीं जा रहा ना। अब क्या करे, 1 पॉइंट एजेंडा। वेरी राइट, ठीक कह रहे हैं आप। खारजा अमूर में अदनान साहब इधर और नहीं होता, इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं। मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूं कि इसको तो 2014 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, नहीं हुई। ये तो एक पहलू हो गया ना। लोग तो ये भी कहते हैं कि इस दौरे का, क्योंकि ईरान से आप ट्रेड कर ही नहीं सकता पाकिस्तान ड्यू टू खतरा है सैंक्शंस का, ये चीजें चल तो रही है ना सर। अब मैं क्या करूं ना, मुसीबत ये है कि मैं वही कहता हूं कि खारजा अमूर के बारे में हम उसको इस तरह डिस्कस कर रहे होते हैं जैसे ये दो बंदों के दरमियान, दो अफराद के दरमियान को मामला है, को मोहल्ले की। इस तरह का नहीं होता। दो मुल्कों की बात है, दो ममालिक हैं जिनकी तारीख होती है और उसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं, बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं। अब आपको ये बात पता है कि जब पाकिस्तान ने 1998 में हमने भारत के जवाब में एटमी धमाके किए थे, तो उस वक्त डू यू नो पाकिस्तान दुनिया का मोस्ट लफ्ज से मोस्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी ईरान से भी ज्यादा सैंक्शन कंट्री था। कौन सी सैंक्शन हमारे ऊपर नहीं लगी 1998 में, जब हमने जवाबी एटमी धमाका किया? उसके बावजूद सरवाइव किया ना। फिर वही सैंक्शंस लगाने वाले थे, और वही फिर कि जब 9/11 हो गया तो मुश और बड्डी हो गए, मुश और बुश। तो भैया सैंक्शंस भी आती रहती है, उनके साथ जिंदगी गुजारने का तरीका होता है। और ईरानी जो है वो क्यों ये चाहेंगे क्या? और हमारे दरमियान कल आपने जिक्र भी किया था कि स्टेट डिपार्टमेंट खामोश भी रहा है इस पे। भाई स्टेट डिपार्टमेंट खामोश रहा, हाँ, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट को वही जो हमारा मसला है, कोई पाइतियां नहीं थे, सिर्फ गैस लिया ऐसा, गैस पाइपलाइन में तो अमरीका ने नहीं चढ़ना। तो हमारे ही पाकिस्तानी भाई ने परेशानी में वहां पे सवाल कर दिया। कहाँ पे? तो यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट की कल वो थी ना ब्रीफिंग में, तो रोजाना होती कुछ हुआ है। तो उसके जो थे वेदांत यानी पटेल साहब, उन्होंने जवाब दिया। वो जवाब सुना ऐसा सबक रहा है वेदांत। अब इसका असूली तौर पर अगर अमरीकी बहुत तिल मिलाए हुए, तो पता है क्या जवाब बनता है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं, मकाना हरकतें कर रहे हैं। We have forewarned many times America, you know, we have told them many times, and don't you remember Donald Trump the other day? इस तरह उनको बात ही नहीं की। उसने क्या कहा? आप उसकी लैंग्वेज देखें ना। Let me say broadly, अमूमी बात, हाँ, उसमें ये है कि यार जिस किसी ने भी ईरान के साथ डील करना है तो वो सोच ले कि खतरा है, कि खतरा है, पोटेंशियल। तो यार जब 9 मन तेल होगा, जब राधा नाचेगी, जब राधा का मुजरा हो रहा होगा, तो उस वक्त वेल रुकेगी ना। नहीं तो ठीक है। तो भाई वहां तक तो पहुंचने। दूसरा, सैंक्शंस जो है सबसे ज्यादा इस एतबार से, याद है सद्दाम हुसैन के खिलाफ कितनी थी, लेकिन क्या ऑयल फॉर फूड का अरेंजमेंट नहीं हुआ था कि जी इराक को खाने के लिए? अच्छा, अब जैसे ईरानी सदर ने अपनी तकरीर के दौरान एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि जी ये जो बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ हैं ये हमारी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करती हैं और ईरान पे बहुत अरसे से लगी हुई हैं। अब मिसाल के तौर पर, और उसमें तो सर्वाइव कर रहे हैं। आपको ये बात पता है इस वक्त दुनिया में बेहतरीन गिलास की प्रोडक्ट कहाँ पैदा हो रही है? डू यू नो, हैव एनी आइडिया? ईरान। रेत से बनता है, चूँकि उन्होंने रेत ढूंढी है वो, और फिर ज़ाहिर है नफासी और उनका तो पुराना एक आर्ट का एक कालीन। अच्छा, अब वो बिकते हैं ना कहीं। वो वाइन ग्लासेस वहाँ तो नहीं बिकते होंगे,
اٹلی میں بعد بکتے میں ہیں ویسے ان کے ریزرو ہم سے اچھے تو آپ وہ کیسے جاتے ان کے ہیں؟ ریزرو ہم سے اچھے نہیں پاکستان تو کیسے جاتے ہیں وہاں؟ ہاں۔ میں عرض یہ کر رہا ہمارا ہوں، کسی اور ملک لیفٹ رائٹ سے ارے یار بات سنو میری، عالمی منڈی میں تقریباً، اب میں چونکہ دھندے کا بندہ نہیں ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح کی بات کریں، ورنہ میں بتاتا، کم از کم 40 سے 50% جو تیل عراقی تیل کے نام پہ بک رہا ہے وہ ایرانی ہے، وہ ایرانی، کم از کم 30% تو ایگزسٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح مارکیٹ۔ ارے بھائی دیر آر ویز، اور ہر چیز، ہر کاروبار پہ سینکشن نہیں لگائی جا سکتی۔ مثال کے طور پر ایران کو گندم کی ضرورت ہے، وہ پاکستان سے گندم خریدتا ہے، تو یہ فوڈ میں آتا ہے، یہ بیسک انسانی ضروریات کا آئٹم ہے۔ تو اس پہ کوئی سینکشن نہیں ہو سکتی۔ ادویات، لیٹس اس میں اور یار دیر آر سو مینی تھنگ۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ایریاز ہیں، یہاں پر اگر ایک دوسرے کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے درمیانے درجے کے تاجر کی، تو اس میں کیا سینکشن لگنی ہے؟ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، بارڈر اور اس کو انہوں نے کہا، بات ہوئی ہے، اس کو وہ تو سینکشن اس وقت سب مبرہ ہوتی ہیں سینکشن پہ۔ ارے بھائی ہم سینکشن کے چکر میں اور بھائی بنیادی بات تو صرف یہ تھی کہ جنوری میں اٹیک ایک دوسرے کے اوپر کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی آپ ہمارے ہاں تخریبی کارروائیاں کرنے والوں کو جی پناہیں فراہم کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے جنوری میں واقعہ ہوتا ہے، تو آج جی فروری مارچ 2 مہینے گزرتے ہیں اور ایرانی صدر آ جاتے، تو سب سے پہلے یہی تھی کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کا رشتہ بحال کریں، اپنے بارڈرز کو سیکیور کریں، اور اس کے بعد لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے، کیونکہ خوف جب تک نہ بیچو نا دکان نہیں چلتی، یہ ریٹنگز کی۔ اب میرے ہی ایک کسی زمانے میں بہت اچھے دوست تھے، میں تو ان کو، مجھے تو بھائی میرے میں تو یہ حوصلہ نہیں ہوتا، ہمارے صحافیوں میں یہ بدعت شروع ہوئی تھی کہ میں اگر تم سے ناراض ہوں تو میں تمہیں غدار قرار دوں گا، اور یہ یا تمہاری کریکٹر اسیسینیشن، یہ جو یہ یعنی بدعت ایک شروع ہوئی۔ میں نے کبھی اللہ کے فضل سے، اب احمد قریشی صاحب ہیں موصوف، وہ جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں بہت ہماری قومی سلامتی کے نگہبان صحافیوں میں ایک تصور ہوتے تھے۔ نہیں وہ اس زمانے کی بات کریں، وہ باجوہ صاحب تک وہ بڑے بہرحال جو بھی تھے، لیکن اچھا خیر میرے ساتھ ان کا کافی ہنسی مذاق، اچھا ہی از ویری بریلینٹ، وہ اسپن ڈاکٹر ہے اور وہ عربی بہت اچھی، یعنی 3-4 لہجوں میں موصوف بول سکتے ہیں۔ اچھا ہاں، اب آج کل ان کی جو 3-4 لہجوں میں، کہ اگر یعنی مصری عربی بولنی ہے، لبنانی، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے، میرے ساتھ لبنان جنگ کی کوریج میں تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا میری خبر ہے ویسے، وہ نہیں یار، کیوں میں غلط بات کیا ہے؟ ارے وہ جب ایرانی صدر یہاں تھے، وہ جنیدہ بچہ جڑا انہوں نے کہا دیکھی جائے گی، وہ اسرائیلی ٹیلی ویژن، اسرائیل کے بہت بڑے یعنی مشہور ٹیلی ویژن کے اوپر وہ چلا گیا۔ نہیں وہ اسکائپ پہ چلے گئے۔ وہ یار مینو تے پائی جی جے اگر وہ اسکائپ تے لہن یا کبھی بھی لہن تے مینو کو چک کے لے جائے گا، یا ہوں جو مولوی میرے دغرا کو کہیں گے جی ذرا سن لو انہوں نے کیا فرمایا۔ ویسے یہاں ایک اور باجوہ صاحب کے زمانے میں وہ اسرائیل گئے تھے، تو انہیں ایک نوکری سے نکال دیا گیا تھا، ایک چینل پہ وہ تھے، تو وہ ناراض ہو کے گئے کہ جی میں ایک سر بڑا ضروری ہے، وہ ناراض ہو کے گئے کہ جی میں نے تسی نوکریوں کاٹ دیتا، تو ان کو کمپنسیٹ کیا گیا کہ جو وہ پرکس اینڈ پریویلیج لے رہے تھے اس نوکری سے، اس کو ملٹیپلائی بائی 3 کر کے انہیں اکاموڈیٹ کیا گیا۔ الحمدللہ ویری گڈ، دنیا کو بتانے کے لیے مجھے بڑا ہو کے احمد سنائیں جی قریشی جنم دے جی، پہلے کلپ دیکھی وہ کیا کلپ کیا ہے۔ اب یہ بھائی صاحب جو ہے نہیں سن لو نا پہلے، یہ اس کا اب وہ کیسا انہوں نے یوں کر کے سپن ماری ہے۔ ایک تو اس میں انہوں نے کمال کیا، انہوں نے کہا جی کہ ایران جو ہے اس سے ثابت یہ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ ایرانی صدر کی آمد کا دفاع کر سکے۔ اچھا کیوں کہ ایران اس وقت خطے میں آئسولیٹڈ ہے۔ اچھا برا جی آئسولیٹڈ ہے، تو ادھر سے ایران کے صدر کہاں گئے ہیں؟ سری لنکا آئسولیشن ہے وہ سری لنکا بھائی۔ اچھا اس کے ایران، اچھا اس کا چائنا اور رشیا سے بہت اچھے کنیکشن۔ ہمارے تو باتیں ہو رہی ہیں نا کبھی دیوالیہ ہونے کے امکانات، سری لنکا تو دیوالیہ بھی ہوا ہے، جتنا انحصار اس کا سری لنکا کا ان دنوں ڈونر کنٹریز پہ اور IMF پہ ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم اس حالت میں پہنچے۔ ہمارے معاشی حالات یقیناً دگرگوں ہیں، لیکن سری لنکا سے بھی تو برے نہیں ہیں ابھی بھی، اللہ نہ کرے کہ ہم انہوں نے اپنی دکان بھی تو سجانی تھی نا، یہاں سے وہ وہاں اسکائپ پہ نہیں گئے، وہاں اسرائیل گئے ہوئے ہیں جی۔ جس دن حملہ ہوا تھا یہ اس دن بھی نہیں، اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہو آپ کے اسرائیلی بہت عزت رکھ لیں گے۔ آپ جارڈن جائیے،
वहाँ पर उन्हें कहिए कि जी मैंने मस्जिद अक्सा में पाकिस्तान में जुमे की नमाज पढ़नी है, लेकिन पहले मुक्के होते अच्छा मुख्य हो वो कहेंगे कि अच्छा जी आप पासपोर्ट ऐसे रख दो तो आपको एक सादा बट कागज इमिग्रेशन पे प्रोसेस नहीं हो सकता। ओ भाई, पाकिस्तानी वो- पासपोर्ट नंबर होगा वो प्रोसेस नहीं होगा। वो भाई वो आपको एक कागज दे देंगे ना, पासपोर्ट रख लेंगे कि वापसी पे ले जाइएगा। इनका इधर हो सकता है तो कोई और मौका- पासपोर्ट भी हो। अरे हम मुशर्रफ साहब के एक बहुत करीबी, उनके बहुत करीबी एक होते थे अकरम सहगल साहब है, और वो बड़े आर्टिकल भी लिखा करते थे आलमी अमूर पे। उन्होंने बाकायदा इजराइल की असेंबली की जो थी ना खारजा अमूर कमेटी, उसके सामने खड़े होकर पाकिस्तान का केस भी प्रेजेंट किया था, जिसके नतीजे बिलाखिर खुर्शीद कसूरी ये वो तो जो अगर आप मिले हुए हो ना थपकी हो थपकी तो मैं कल जाके तक नहा देना इजराइल डेली, लेकिन पहले मैंने इंश्योर करवाओ। थपकी हाँ, होनी थपकी चाहिए। होनी एक और चाहिए। क्लिप भी है, क्या कहा अहमद कुरैशी ने? ये देखिए ना वो कितनी बारीक वारदात डालते हैं। वो कह रहे हैं साहब देखिए इनके दरमियान कैसे अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। सद्दाम हुसैन का नाम जो है ना वो ईरान में गाली के मुतरादिफ है, उसका नाम और जिक्र, इसलिए कि उधर उनका इनकलाब आया और सद्दाम ने 8 साल तवील जंग जो है उन पर मुसल्लत कर दी, जिसके नतीजे में जाहिर है इनके पास तो ये तो अपनी हाड़ाहुड़ी में थे उस वक्त, तो इनको ह्यूमन वेव्स यानी कि लोग अपने गले में कलाम पाक डाल के तो वो अपने आप को डिफेंड, तो जाहिर है कि वहाँ माओ घर घर में एक बड़ी शदीद नफरत पाई जाती है सद्दाम के खिलाफ। अब ये क्या कह रहा है भाई सौदा बेचना आता है उसको, अपना थपकी भी हो तो वाह वाह, और ऊपर से यांकी देखो ना एक्सेंट in सो अब वो ये कह रहा है कि सद्दाम हुसैन के बाद पहली मर्तबा 23 साल का वक्फा गुजरने के बाद देखो लिंक किससे कर रहा है सद्दाम, और फिर पाकिस्तान ने जेट तैयारे भेजे और वो जनवरी, ठीक है। हेलो हेलो। और उसके बाद ये कि पाकिस्तान वैसे इतना कीन नहीं है गैस वो करने के। अच्छा अब अगर इसको पाकिस्तान अगर किसी अपनी दुकानदारी ठीक उसने कर ओकेगा जी, मैं तो ये कहा कि बल्कि पाकिस्तान इज नॉट कीन, लिहाजा हैंग ऑन मैन इतने आप परेशान ना हो कि हम गैस पाइप कुछ मुझे भी खेलने का मौका दें। इतनी सी बात। असल में अर्ज मैं ये करना चाहता हूँ अच्छा मेरे पास टाइम की कि कमी है। दुनिया शायद इतनी परेशान नहीं होती जितना हम खुद अपने प्रोग्रामों में रेटिंग लेने के लिए सबको परेशान देखिए साहब, ना मैं मोहसिन नकवी बन सकता हूँ ना आप अहमद कुरैशी, आप नुसरत जावेद रहेंगे, मैं अदनान नकवी साहब का क्या आ वो गया? नहीं, वो 1 मिनट दे दो, सुनो टाइम खत्म हो रहा है। वजीर आजम आज कराची गए, 1 मिनट लूंगा ज्यादा नहीं। वजीर आजम कराची गए, उन्होंने वो खिताब किया, बातचीत की। नहीं यहाँ पे मोहसिन नकवी कहाँ गए? वो यार आप कह रहे थे ना मैं अहमद कुरैशी बन जाऊं, अल्लाह मुझे अच्छा मेरे बारे में आप मोहसिन नकवी, आप तो हम ना मैं मोहसिन नकवी बन सकता हूँ ना आप अहमद कुरैशी बनने की काबिलियत है आप में। मुझे ये बताएं कि वजीर आजम गए, उन्होंने जो बिजनेसमैन थे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, उनसे बातचीत कर कहा कि मैं वजीर आजम नहीं हूँ, मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ कि पॉलिसीज बनाई जाए। आरिफ हबीब साहब एक बिजनेसमैन है, उन्होंने कहा कि पटियाला भी बात करें ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और हिंदुस्तान से भी बातचीत करें और हिंदुस्तान से बिजनेस ट्रेड वगैरह के बारे में। अच्छा इस पर मुझे सिर्फ एक एतराज है, आपको इमरान खान साहब से हजारों इख्तलाफात हो के बासिस, यार ये एनालॉजी गलत है दोनों का कि भारत के साथ और बात है डोमेस्टिक। आप ये कहते हैं कि जी आपको सियासी इस्तेकाम के लिए चाहिए कि मुल्क में जो डिवीजन है, जो नफरतें बढ़ी हुई हैं, इसे कम करें, लेकिन ये करना कि जी एक हाथ आप इंडिया के साथ भी मिलाएं और एक और दूसरा हाथ उन यानी कि दोनों को इक्वेट करना, यार ये तो मेरा ख्याल है ना। मैं बानिया तहरीक इंसाफ का बहुत क्रिटिक हूँ, लेकिन मैं कभी उनको उस यानी के पलड़े में तो नहीं डालूंगा जहां मैं भारत को लूंगा, नहीं यार दिस इज नॉट फेयर। लेकिन क्योंकि बड़े आदमी है, सब लोग हैं, तो भाई साहब बिजनेसमैन, उन्होंने कहा पाकिस्तानी इकोनॉमी बेहतर यार ये बिजनेसमैन यही इसी तरह के लोग जब ये सारे मशवरे देते थे मुशर्रफ साहब को, फिर कहाँ गायब हो गए? ये तो तब नहीं थे, ये उस वक्त भी क्या करते थे, मतलब कि स्कूल से अपना चाकते लेते पैसा। अच्छा जब वो उसने नवाज शरीफ ने बुलवाया तब भी से हाँ, शहबाज शरीफ यूं करके टर्न करके कहते कि वैसे आरिफ साहब बात यह है कि मेरे भाई ने बुलाया था जब वो, यार तो आप कहाँ थे मीनार पाकिस्तान में वो आए थे, तो आरिफ साहब आपने उनके लिए कुछ किया था सर? और वैसे तो ये आजकल निगहबानी और निगरानी क्या कहूँ, चलो कुछ ना कहें, लुक आफ्टर किसको करते हैं? वेरी राइट। जैसे इस पार्लियामेंट में सियासी चेहरे नहीं बदले, उसी तरह पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी में चेहरे नहीं बदले, तो बाकी फिक्रेबाजी हैं, ये तब्दीली नहीं आएगी। एक ब्रेक ना सही।
वेलकम बैक नुसरत साहब। एक अहम मसला है मिलिट्री कोर्ट्स का, तो मैंने हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वसीम मलिक उनको बुलाया। वसीम, बहुत शुक्रिया हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइए कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो लार्जर बेंच का मामला है, ये मामला है क्या, और आज जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें क्या फैसला रिमार्क्स दिए गए, और क्या कोर्ट का आज की जो गुफ्तगू थी जजेस की और वकला की, मैं चाहूँगा ज़रा उस पर एक रिपोर्टिंग हमें कीजिएगा कि क्या अपडेट्स हैं आज कोर्ट से। अच्छा देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 23 अक्टूबर 2023 का जो फैसला था जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल एहसन की सरबराही में, जिसमें सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है उसे कलअदम करार दिया गया था, तो उसके खिलाफ जो उस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट थी या फिर वजारत दिफा थी, उनकी जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। और आज उसके ऊपर समाअत थी उस बेंच की, और जो दरख्वास्त गुजारान थे जो मरकजी अपील में थे, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस हैं जवाद ख्वाजा साहब, उनके जो वकील हैं ख्वाजा अहमद हसन, बैरिस्टर एहतजाज अहसन, ये भी दरख्वास्त गुजार थे, सलमान अकम राजा एक और दरख्वास्त गुजार के वकला थे। तो इन तीनों ने बेंच के ऊपर ये इतराज़ इस हद तक उठाया कि चूंकि ये जो बेंच है इसकी जो साख्त है वो 6 मेंबर बेंच है, और जो गुज़श्ता मरकजी अपील का फैसला है उसमें 5 मेंबर बेंच जो है वो फैसला दे चुका है। तो कानूनी तौर पर तो 5 रुकनी बेंच का फैसला 6 रुकनी बेंच, चाहे वो 4-2 की अक्सरियत हो, उससे नल एंड वाइड करार दे सकता है। मगर इखलाकी तौर पर उन्होंने ये उठाया कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो क्या सोचेगी, अदलिया के ऊपर जो आवाम का कॉन्फिडेंस है वो किस तरह से जाएगा, कि अगर प्रपोजिशन ये बना दी जाए कि जो गुज़श्ता फैसला है 5-0 की अक्सरियत का जो फैसला था उसे अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो 6 रुकनी बेंच है ये 4-2 की अक्सरियत से, या फिर अगर 4-2 की अक्सरियत से फैसला कर देता है तो आईनी और कानूनी लिहाज से तो बिल्कुल दुरुस्त हुआ, मगर इखलाकी लिहाज से ये फैसला कहां स्टैंड करेगा। और दूसरा फिर उन्होंने एक और इन तीनों वकला ने ये एक मिनट वसीम, पहले इससे पहले सॉरी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये एक ताज़ा अपील थी ख्वाजा साहब की तरफ से, या कि वो जो फैसला आप कह रहे हैं 23 अक्टूबर वाला, उसमें तो कलअदम करार दे दी गई थी ना जी मिलिट्री कोर्ट्स, फिर गालिबन उसके खिलाफ भी केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़माने में रिलीफ हासिल की गई। क्या पहले उसका बैकग्राउंड तो बता देना पहले। अच्छा देखिए सर, बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि जब ये फैसला किया गया कि सानिया 9 और 10 मई के जो मुलविस मुलजमान हैं उनका ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाएगा, तो गालबन गुज़श्ता साल जो मई और जून का महीना था उसमें जो दरख्वास्त गुजार थे एहतजाज अहसन और जवाद ख्वाजा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत यानी मुफाद आमा की एक आइनी दरख्वास्त लेकर आए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 23 अक्टूबर को फैसला दिया, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया। फिर आगे बढ़ता है मामला, सितंबर 2023 में इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर होती है, और ये इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। इससे कबल इस तरह के जो इंट्रा कोर्ट अपील है आइन के आर्टिकल 184(3) की, वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किसी भी एक केस में तय नहीं हुई। यानी आप ये कहेंगे कि ये वो जो तय हुआ था कि जी सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आ जाए अज खुद नोटिस के तहत या अज खुद अख्तियारात के तहत, तो उस पर नजर सानी की जो दरख्वास्त दायर हो सकती है, उसका जो तरीक़ेकार बनाया गया था उसके मुताबिक ये पहली अपील है जो कह रही है कि नहीं साहब, फौजी अदालतों को कलअदम ही करार दिया जाए। आप ये फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इससे कबल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और मुकदमा था जो नैब तरामीम को कलअदम करार दिया गया था, बानी चेयरमैन की दरखास्त थी, उसके ऊपर भी इंट्रा कोर्ट अपील है, मगर वो मामला इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई, एक आध समाअत हुई, अभी तक उस मामले को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। मगर ये जो फौजी अदालतों वाला केस है ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। मगर जहां दिलचस्प सूरत हाल ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि गुज़श्ता साल जब मरकजी अपील थी, इसी बेंच को 3 बार टूटना पड़ा, फिर 5 रुकनी बेंच बना और उसने 23 अक्टूबर को फैसला सुनाया। जब उसी फैसले के ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील दायर होती हैं, तो इस इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर पहली मर्तबा बेंच बनाया जाता है। 13 दिसंबर 2023 को जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जो उस वक्त सीनियर प्यूनी जज होते थे, उनकी सरबराही में 6 रुकनी बेंच बनता है। वो बेंच 29 जनवरी 2023 को टूटता है। फिर मार्च में यह बेंच बनाया जाता है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, और अब आज वो बेंच भी तकनीकी तौर पर टूट चुका है, और उस बेंच ने 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के मामला फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया है, क्योंकि दरखास्त गुजारों का ये इतराज। वसीम, बेंच अभी इंटैक्ट है, बेंच टूटा नहीं है। बेंच ने ये मुझे तस्हीह कीजिएगा अगर मैं गलत, बेंच ने ये कहा है कि कमेटी डिसाइड करे कि लार्जर बेंच सुनेगा या यही बेंच सुनेगा।
तो ये कमेटी अभी डिसाइड करेगी, am I right or wrong? देखिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इससे कबल हमने अमूमन ये देखा है कि जब इतराज किया जाता है तो वो किसी स्पेसिफिक जज के ऊपर इतराज किया जाता है, उनके माजी के कोई फैसले हों, माजी के कोई नोट्स जी, हों, अब ये उनको पूरा हवाला दें। बेंच की तश्कील ही उस पर, लेकिन इस वक्त जो अभी बहुत सारा थोड़ा सा ये है कि एक हवाले से हमारे साथी भी, अगरचे वो बाकायदा सहाफ़ियों में शामिल तो नहीं होते, लेकिन बहरहाल वो कॉलम लिखते हैं और तबसरा राय भी करते हैं। कौन? हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। जी जी जी। उनके बेटे ज़ाहिर है हसन जो हैं वो इस मामले में मुलव्विस रहे हैं। अब उनका जो इक़दाम है वो अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल वालिद के नुक्ता नज़र से और है। तो सुना है कि वो अदालत में आबदीदा हो गए थे और उन्होंने क्या अदालत के होते हुए खड़े होकर कुछ अपने बेटे की गुमशुदगी के बारे में कुछ इल्ज़ामात लगाए, या कि आप लोगों से गुफ्तगू करते हुए कहा है? देखिए बिल्कुल समाअत अभी जारी थी जब बेंच ने ये आपस में कंसल्टेशन के बाद ये फैसला सुनाया कि हम ये मामला कमेटी को भिजवा रहे हैं। तो जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हैं वो रोस्टम पर आए और उन्होंने बेंच से मुखातिब होते हुए ये कहा कि उनके लिए ये बात अहम नहीं है कि बेंच 6 रुकनी होगा, 9 रुकनी होगा या बेंच की साख क्या होगी। उनके लिए अहम मामला ये है कि इंसाफ कब मिलेगा। उनका ये कहना था कि उनके जो बेटे हैं जो तहवील में थे, अब उन्हें ये इतलात आ रही हैं कि वो वहां से लापता हैं। तो इसी दौरान जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हैं वो आबदीदा भी हुए, वो जज्बाती भी हुए और उन्होंने बेंच से ये इस्तदा की कि उन्हें इस मामले पर फिल फॉर रिलीफ दिया जाए। तो खैर जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का 6 रुकनी बेंच है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्हें ये हिदायत की कि वो आज के रोज ही हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आज ही तो उसके बाद आपने फॉलो अप किया है कि अभी तकरीबन 8 बज कोर्ट ने के वो खास डायरेक्शंस नहीं दिए वसीम। मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि आज ही इस मामले को देखें, रिपोर्ट का नहीं कहा बेंच नहीं, ने। आज ही हफीजुल्लाह नियाज़ी से मिलकर मामला हल करने की हदायत की। ये यानी कि मुलाकात करवाएं या कोई तरीक़ेकार वज़ा करें? देखिए सर, इस तरह इससे कबल भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ मामलात में मुआवनत करते रहे हैं अदलिया इस तरह के केसेस में। अब जब बेंच की जानिब से उन्हें ये हिदायत दी गई तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने तौर पर जो अटॉर्नी जनरल ज़राए थे, हमने बाद में पता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ये आज कमरा अदालत में बात कह रहे हैं कि उनके जो बेटे हैं वो लापता हो गए हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पहले अपने जो तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफिस पता करेगा और उसके बाद ये जो मामला है ये हफीजुल्लाह नियाज़ी नहीं, ये बात उन्होंने अदालत को नहीं कही, ये आपने बाद में फॉलो अप करते हुए स्टोरी के ये बात अखज़ की है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब अदालत की जानिब से हिदायत दी गई थी तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उस पर हामी भरी और यकीन दहानी कराई कि वो इस मामले को हल करने के लिए अपना जो किरदार है वो अदा करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह। चलें जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक मेरे ख्याल में एक और पॉइंट हमारे पास 1 मिनट है वसीम, मुझे ये बताएं कि ये जो बुनियादी अपील थी जिसका दूसरे साहब ने भी हवाला दिया है अभी, वो फौजी अदालतों के कयाम को चैलेंज कर रही थी जी, या सिर्फ 9 मई? नहीं, मैं चाहता हूँ कि अपील इन्होंने पढ़ी है ना, ये ठीक है। उस अपील में 9 मई के जो गिरफ्तार मुल्जमान हैं उनका जिक्र भी शामिल था। अगर उनका जिक्र भी शामिल है तो वो कॉन्टेक्स्ट सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड है या फौजी अदालतों के कयाम से रिलेटेड है? देखिए, जो दरखास्तें दायर की गई थी उसमें बुनियादी तौर पर दरखास्त गुजारों ने अदालत से 2 क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ये इस्तदा की थी। पहले नंबर पर यह था कि जो सानिया 9 और 10 मई के मुलव्वस मुल्जमान हैं उनका फौजी अदालतों में ट्रायल ना किया जाए, और उसके साथ साथ ये भी इस्तदा की गई थी कि जो आर्मी एक्ट की सेक्शंस हैं जिनके तहत ही किसी सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाता है उसे भी कलअदम करार दिया जाए। तो उसी के ऊपर जो गुज़श्ता बेंच था जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल हसन की सरबराही में 23 अक्टूबर को जो फैसला आता है उसमें 2 तरह का फैसला आता है। 5 रुकनी बेंच यूनानिमसली इस बात पर इत्तफाक करता है कि जो 9 और 10 मई के मुल्जमान हैं उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा, मगर साथ ही 4-1 की अक्सरियत से फिर एक और फैसला आता है जिसमें आर्मी एक्ट की वो सेक्शन जिनके तहत ही इन सिविलियंस को ट्रायल किया जाता था उन्हें कलअदम करार दिया जाता है, उन्हें नल एंड वाइड करार दिया जाता है, खिलाफे आइन करार दिया जाता है। सिवाय जस्टिस याहिया अफरीदी के वो अपना इजाफी नोट लिखते हैं और उसमें कहते हैं चूंकि माजी में ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली केस हो या फिर 21वीं आईनी तरमीम का रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार केस हो तो उसमें जो बेंच की साख थी, एक में 5 रुकनी बेंच और दूसरे में 7 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, तो वो कहते हैं कि मैं 5 और 7 रुकनी बेंच के फैसले का बाउंड हूं, लिहाजा मैं आर्मी एक्ट की जो सेक्शंस हैं इन्हें नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं करता। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जब ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई तो जब इसकी पहली समाअत 13 दिसंबर को हुई थी जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल जो सरदार तारिक मसूद की सरबराही में, तो उन्होंने जो 23 अक्टूबर का फैसला था वो मुअत्तल कर दिया था। टाइम खत्म हो गया, तो मेरा पॉइंट जो था वो हमने क्लियर हो गया। मैं पूछना चाह रहा था
9 मई का जिक्र है और फिर साथ में आर्मी एक्ट के तहत मेरा ख्याल है कि ब्रॉडर टर्म में, क्योंकि देखो ना ये डायरेक्ट जो है 30 सेकंड में यानी जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा साहब जो हैं वो अफेक्टेड पार्टी तो नहीं है, उनका तो कोई अजीज तो नहीं है इसमें। मेरा ख्याल है उसूली तौर पर वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या आईन के होते हुए फौजी अदालत हो सकती है या नहीं, और अगर ट्रायल कोर्ट मौजूद हो तो ये अगर मेरे और आप जैसे सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। एक ब्रेक नाज़िर, बुनियादी सवाल ये। एक ब्रेक जल्दी से। हाँ भाई, उसके बाद होता ये है कि तुम बार बार टाइम नहीं है। बात ये है कि जल्दी से मैं दोबारा परेशान हो गया हूँ यार, ये तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के साथ क्या चक्कर है। तो छेड़ हमारे बाप का लाहौर की गलियों में कहते हैं फलां चीज में छेड़ बढ़ गई। यानी उन बेचारों ने अब 3री मरतबा इलेक्शन करवाए हैं। वो भी इलेक्शन कमीशन ने कहा जी 30 अप्रैल में हुआ, भी ठीक नहीं हुए। नहीं तो 4 मार्च उन्होंने 4 मार्च को तो उन्होंने इलेक्शन अपनी वो तफसीलात जमा करा दी हो गए। जाहिर है उनकी उन्होंने वो देख के जांच पड़ताल करके कोई नुकता निकाला। कौन सा ये आइंस्टाइन का लिखा हुआ कोई रिसर्च पेपर था कि इलेक्शन कमीशन नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन को हमेशा स्पेयर करते हैं। आई नो आपके अच्छे दोस्त हैं। उनसे राजा साहब से पूछ लो जरा, वो तो बहुत सारे लोगों से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये वो निकम्मा, उन्होंने हमारे दफ्तर के भी 2 दोस्तों के साथ उन्होंने शिकवा किया है। क्या मैं बताऊं अब आपको शिकवा क्या किया? ये लिस्ट बनाई थी तो दुनिया के निकम्मे 3 इलेक्शन कमीशन में से ये होगा। जेडे इलेक्शन ने कराए ने सारे मशकूक। कोई एक इलेक्शन बताएं हल्फन कि जो इस इलेक्शन कमीशन ने कराए हो, जो हमारे हमसाये में हो और वो मशकूक ना हो। लोगों को ये राजी नहीं कर पाते इनके होते हुए गिरफ्तारी। कल आप इंडिया के इलेक्शन पे तो बड़ा आपने खुल के बात की है। ओ भाई, जो अभी इलेक्शन संडे को गुजरे ज़मीनी इंतखाबात, वो जेडे सुन्नी ताज वाले थे PTI के हवाले, उनके कई उम्मीदवार पकड़े गए। इलेक्शन कमीशन सन्नाटे में था, बात नहीं की। 4 मार्च को उन्होंने दस्तावेजात दिए PTI ने, 4 को दिए ना सर भाई। 1.5 महीना ये उस पर कौन सा प्लेजरिज्म निकालते रहे। अब निकल आएगा ना, नहीं पकड़ा गया। नहीं, टाइम मेरे पास काम है। कुछ जाती मैं एक बात करना चाहता हूँ, उसमें आप भी शामिल है। बाय द वे, हमाद अजहर साहब, उनका अक्सर आप जिक्र कर देते हैं। एंड में फंसा वो मुझे लेते हैं। कभी कोई नहीं, वो कल मंडे के शो में आपने जिक्र किया था कि हमाद अजहर साहब को भी बाई इलेक्शन के लिए मैंने सिर्फ ये कहा लाहौर। यार देखो, गलत ना कहो बात। मैंने ये कहा था, मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि PTI का बुनियादी ये है ना बयानिया कि जी हमारे इलेक्शन चुराए गए। तो जाहिर है जो अगर इलेक्शन मुबैना तौर पर चुराए गए हैं तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कौमी असेंबली की सीट जीती थी वो भी जीती नहीं थी, चुराई थी। अब वो खाली उन्होंने कर दी। उस पर 21 तारीख को इलेक्शन था। तो मैंने कहा यार, ये सारी तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे छाए होते हैं, हमाद अजहर का नाम लिया आपने कि वो लाहौर से हैं, तो उनको हमाद अजहर साहब का मैंने खुसूसी तौर पर इसलिए जिक्र किया कि बहरहाल वो लाहौर की एक बाइज्जत बाअसर बरादरी और खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनके वालिद साहब के साथ उनका पैगाम है आपके लिए कि वो आप वो ये कहते हैं। तो मैंने तो और बात की थी, वो बाद में करता हूँ। उन्होंने कहा जी उर्दू साहब समझते हैं कि शायद मेरे लिए कोई प्रोटोकॉल है और मैं बड़ा आजादी से, मैंने कहा था, मैंने हर किसी तो वो कह रहे हैं कि नुसरत साहब को कहिए कि मेरे सारे केसेस खत्म करवा दें। आप कह रहे हैं सिर्फ मैं हमाद अजहर साहब आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, आप PTI ट्रोल्स के जरिए मेरी जो रोजाना क्लास होती है वो रुकवा दें। मेरे भाई, मैं इस काबिल नहीं हूँ जिसको रोजाना जो है वो कभी बासी जाल और पता नहीं क्या क्या कहते शुरू हो जाते हैं। बड़ी अहम बात है, मुझे नहीं थी पता। उन पे कई केसेस हैं, ठीक है, उनको कुछ रिलीफ मिला, लेकिन हर रोज नया केस उन पे बना दिया जाता है और उन्हें ये भी नहीं पता। बरादर मिल्लत एक शेर, उनका घर अभी भी सील है। मिसरा है। मैं वो जो कह रहे होंगे बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन कहा जाता है यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैं खाना कहते हैं। गुजारिश ये है, ये पाकिस्तानी सियासत है। इस पाकिस्तानी सियासत में जो है, मैं ये नहीं कहता कि ये प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। अच्छा, मैंने चौधरी जहूर लाई पर भैंस की चोरी का मुकदमा कायम हुआ है। ठीक है, सही कह रहे हैं। मैंने कह दिया कि प्रोटोकॉल में एंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने मुझे लगा कि वो KPK से रिलीफ लेके आए हैं। मैं तो आज भी ये समझता हूँ उनकी बहरहाल अगर वो ही ये फील करते हैं कि जी कोई सुनवाई नहीं है, तो जाहिर है ये अफसोस की बात है कि उनको अगर पाकिस्तान की अदालतों ने, KPK पाकिस्तान में है ना सर, अगर KPK की अदालतों ने रिलीफ दिया और फिर एक बंदे को बताना चाहिए कि उस पर कौन कौन से केसेस हैं, और वो बड़ा मुश्किल वक्त वो गुजार रहे हैं। भाई तो मैं इस मामले में मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जी मैंने तो
और सिर्फ हमाद अजहर तो शामिल नहीं थे। एक और भी उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है कि व्हाट्सएप का आपने जिक्र किया था, क्योंकि मैंने तो मोबाइल एक एमपीए के मोबाइल में वो मैसेजेस देखे। उन्होंने कहा जी मेरे वो बड़े अच्छे दोस्त हैं क्या नाम था उनका, पंजाब वाले, जिन्होंने अपोजिशन लीडर बनना था, एजाज नहीं मियां असलम इकबाल साहब। मियां असलम। और मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि वो पंजाब असेंबली में एक्टिव रोल बतौर अपोजिशन लीडर प्ले करें, और मैं हमेशा उनकी सियासत का भी एक फैन और दाई हूं और उनको सपोर्ट करता हूं और उनको बड़े भाई की तरह समझता हूं। तो वो कहते हैं कि वो जो स्क्रीनशॉट आपको मिले हैं वो फैब्रिकेटेड भी हो सकते हैं, तो ये उनकी आई डोंट नो कि तो वो आपके पास क्यों आते हैं फैब्रिकेटेड? क्योंकि लोग समझते मेरे हैं पास नहीं, मैंने तो देखे ही है ना सर, मैं डिनाई नहीं कर रहा उससे, मैं उस पर भी कायम हूं, मैं उनकी बता रहा हूं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास, लेकिन अगर फैब्रिकेटेड चीज है तो आप डबल चेक किया नहीं, बगैर आपने टीवी टाइम पे क्यों खत्म हो कहा? गया, अल्लाह हाफिज। ये आपने शरारत क्यों कहा? साहब ये शरारत करते हैं और आप मुझसे गिला करते हैं, आपके क्योंकि वालिद के दोस्त हैं तो इन्हीं से गिला किया दोस्ती करें। नहीं है, अच्छा मैं अच्छा ताल्लुक तो है ना सर, अपना ख्याल बहुत रखिएगा इज्जत नाज़रीन, और एहतराम का, बाहमी इज्जत और एहतराम का। अपना ख्याल रखिएगा, नियाज़र साहब। अल्लाह हाफिज।